سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور امریکہ کا باہمی تعلقات اور تجارتی سلسلہ مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان وسیع معاملات پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سری نگر میں NCC کیمپ میں شرکت۔ ملک کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے نوجوانوں پر اعتماد کا کیا اظہار۔ بارہمولہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ اور مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کا پریلیمنری امتحان منعقد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ گہرے اور وسیع البنیاد تعاون کے ساتھ ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یہ نتیجہ خیز مذاکرات پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک کے طور اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت اپنی نوجوانوں کے تئیں نہایت پر امید ہے اور اسے اعتماد ہے کہ ہماری نئی پیڑھی اس ملک کو نئی بلندیوں تک پرواز کروائے گی۔ آج سری نگر میں NCC کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے NCC کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی۔ آج بھارت اپنے یواؤں کو آسا اور وشواس سے دیکھ رہا ہے کہ آگے بڑھتی ہوئی یہ پیڑھی ہمارے راشٹر کو نئی اونچائیوں تک لے جانے میں سکچم بنائے گی۔ کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی۔ دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے۔ اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش کے لیے وودھتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے۔ LG نے کہا کہ NCC کیڈٹس کو NCC کے اقدار نہ صرف برقرار رکھنے ہیں بلکہ اپنے تئیں عوام میں پھیلے ہوئے اس اعتماد کا احترام بھی کر لینا چاہیے۔ کیمپ کے دوران NCC کیڈٹس کی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کی گئی جو بھارت کی بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ کیمپ کے دوران ملک بھر سے آئے 340 کیڈٹس اور افسران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر NCC کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل وریندر واٹس بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج لنگیٹ جا کر رکن پارلیمان انجینئر شیخ رشید اور ممبر اسمبلی خورشید احمد شیخ کے ساتھ ان کے والد حاجی خضر محمد شیخ کی رحلت پر ان سے تعزیت پرسی کی۔ وزیر اعلیٰ نے سوگوار کنبے کی ڈھارس بندائی اور مرحوم کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کی۔ ان کے ہمراہ کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار، راجیہ سبھا کے ممبر چودھری محمد رمضان اور کچھ دیگر اہم شخصیات بھی تھیں۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر نے ایک معروف قومی اخبار انڈین ایکسپریس میں منشیات کے خلاف جنگ کے بارے میں اجے سنگھ کے مضمون کو ہر کسی کے لیے پڑھنے کے لائق بتایا ہے۔ اس مضمون میں منشیات کی لعنت کو ہرانے کے لیے سماج اور انتظامیہ کا اہم رول، متاثرین کی باز آباد کاری اور نارکو ٹیرر نیٹ ورک کو تہس نہس کرنے کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ سیکورٹی فورسز نے آج بارہمولہ کے کنڈی علاقے میں خصوصی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا۔ ہمارے بارہمولہ کے نمائندے کے مطابق 52 RR CRPF اور SOG کریری نے نلسر میگ باغ سے 14 RPG شیل، 9 بسٹر، 3 کپ اور شیشے کی کچھ بوتلیں برآمد کر لی۔ اس موقع پر بم نکارہ بنانے والے اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا جبکہ معاملے سے متعلق چندوسا کے پولیس اسٹیشن میں ایک کیس بھی درج کر لیا گیا۔ تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنی جائز حقوق اور ان سے کیے گئے وعدوں کے لیے ابھی بھی منتظر ہے۔ اننت ناگ میں آج ایک میرج ہال کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرج ہال مقامی لوگوں کی ایک دیرینہ مانگ تھی جس کی بدولت ان کے لیے ایک بڑی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمارے اننت ناگ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس موقع پر MLA عبدالمجید لارمی اور دیگر متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ دریاستہ وزیر موصوفہ نے آج بڑگام جا کر وہاں ایک کمسن بچی کے ساتھ پیش آئے دلخراش واقعے پر متاثرہ کنبے کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ کنبوں کو سرکار کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ آج ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے۔
इन दिनों लाखों की तादाद में आज़मीन हज सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज की अदायगी के लिए जमा हो रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वाज़ह रहे कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला कल से शुरू हो रहा है। इस दिन आज़मीन हज एहराम बांधे हुए पूरा दिन मिना में गुजारेंगे। 9 ज़िलहज्जा को नमाज फजर के बाद आज़मीन वकूफ़ अरफात के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल सर्विसेज 2026 के सिलसिले में आज श्रीनगर में सूबाई इंतजामिया कश्मीर की निगरानी में 9 ज़िली इम्तिहानी मराकज़ पर इम्तिहान का अमल कामयाबी के साथ मुनाकात किया गया। इस सिलसिले में सलामती समेत दीगर तरह के सभी माकूल इंतजामात किए गए थे। सभी ज़िली इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों की हाजिरी चेहरे की शनाख्त की बुनियाद पर की गई, जो 100% कामयाब रही। कुल मिला के 2001 उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए, जिनमें 27 उम्मीदवार जिस्मानी तौर से ख़ास थे। जिस्मानी तौर से ख़ास उम्मीदवारों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर में तमाम ज़रूरी सहूलियात से लैस एक मखसूस मरकज़ कायम किया गया था। बडगाम पुलिस ने कहा कि वो गलवानपुरा सबदन में एक मासूम लड़की के कत्ल वारदात की तहकीकात कर रही है और कातिलों का बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। ताहम पुलिस ने लोगों, खासकर सोशल मीडिया हैंडलों को मुतनब्बा किया है कि वो मकतूला की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से गुरेज करें, जो इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पूरी दुनिया खुसूसन बर-ए-सग़ीर मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए बेताब है और वो अमन बातचीत और सफारती सतहों पर ईरान अमरीका तनाज़ा को हल कराने के ख्वाहां हैं। श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से बात करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी अवाम हमेशा इफ़हाम व तफ़हीम को तरजीह देती आई है, क्योंकि इसी में अमन सलामती का राज मुज़मिर है। इसी दौरान पार्टी के अरकान पार्लिमान मियां अल्ताफ़ अहमद, एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सजाद अहमद किचलू और शमी ओबराय नीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के असम्बली मेंबरान ने बाज़ BJP लीडरान की तरफ से उमर अब्दुल्ला सरकार पर उंगुशनुमाई करने के लिए उनकी ज़बरदस्त मज़म्मत की है। शोबाई तालीम समाज में एक मस्बत बदलाव लाने में कलीदी रोल अदा करता है। ताहम वक्त की ज़रूरत है कि शोबाई तालीम को जदीदियत से हमकिनार करने के साथ साथ इसमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलाव लाया जाए। इस ताल्लुक से दुबई में मुकीम एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसान के इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस रियल है और वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें एज ए टूल लेना है, लेकिन अपना दिमाग उसमें लगाना है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे स्कूल के तलबा तालिबात हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इससे कि वो अपना दिमाग लगाते नहीं है। क्वेश्चन टाइप किया, उससे आंसर ले लिया, उसको कॉपी कर लिया। कुछ क्रिएटिव अगर टीचर ने करने को दिया है तो वो भी वहां से लिया, इससे कॉपी कर लिया, वहां से राइटअप कॉपी कर लिया। तो इससे क्रिएटिविटी पे बहुत फर्क पड़, उनके सोचने की सलाहियत कम हो रही है। सोचने की सलाहियत जो हमारे स्क्रॉलिंग ऑफ रील्स है उससे भी बहुत हो रही है। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं और मनशियात के ढांचे को ख़त्म करने नीज़ इस लत में फंसे नौजवानों की बाज़ आबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मनशियात से मुतल्लिक LG मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिदत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के ताल्लुक से डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टॉक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो आजकल के नौजवान हैं इनको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं। ये पहले ही इन्वॉल्व है एक स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ इनको जो स्क्रीन एडिक्शन है ये भी बहुत रहता है, रिस्क को बढ़ा देता है। जरूरत इस चीज की है कि पेरेंट्स भी अपनी तरीके से होशियार रहें। पर्सनालिटी चेंज वो बच्चे में अगर देखते हैं तो सीरियसली ले लें और बच्चे को फॉलो किया करें, इसके बिहेवियर को, इसकी कंपनीज को, ताकि हम इन मासूम बच्चों को इस ड्रग एडिक्शन की तरफ जाने से बचाएं।
इसी दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मा ने भी नौजवानों से कहा कि वो एक मजबूत, सेहतमंद और मनशियात से पाक जम्मू कश्मीर की तामीर यकीनी बनाएं। वो JNV जम्मू में मुनक़दा सालाना इनामात की तकसीम कारी और एक सकाफती प्रोग्राम में तालिब इल्मों, असातिज़ा, वालिदैन और दीगर अरकान से खिताब कर रहे थे। पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे डाले, गिरफ्तारियां अमल में लाई और बेदारी प्रोग्राम मुनाकद किए। अनंतनाग पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान इयॉन गाड़ी से 4.5 किलो चरस जब्त कर ली। पुलिस ने गाड़ी और इसमें सवार दोनों अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नकद 50,000 रकम भी बरामद कर ली। इधर बिजबिहाड़ा इलाके में एक कार्रवाई के दौरान 3 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। रखी नौबुग इलाके में एक नाके के दौरान उमर रशीद गनाई नामी शहरी से 300 ग्राम के करीब चरस बरामद कर ली गई, जबकि नटीपुरा बिजबिहाड़ा में बशीर अहमद डार के घर से तलाशी के दौरान करीब 3 किलो चरस जब्त कर ली गई। अनंतनाग में ही पुलिस ने NDPS के तहत 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। अवंतीपुरा में कई मुकामात पर मनशियात के कारोबार से मुतालिक शिकायत पर छापे डाले गए। पुलिस ने सोमू स्टैंड अवंतीपुरा में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में भी पुलिस ने मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी रखी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीवान बाग बारामूला से एक रैली निकाली गई, जिसको टीचर्स एसोसिएशन का ताउन हासिल था। ये रैली खनपुरा मेन चौक में इख्तिताम पजीर हुई। जिला के पलहालन पुलिस पोस्ट के तहत आने वाले इलाकों में भंग हटाने की कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि बटपुरा कुंजर में दारुल कुरान के इश्तराक से एक रोड रैली बरामद की गई, जिसमें लोगों की अच्छी तादाद शामिल थी। जम्मू सूबे में भी पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सांबा, कश्तवाड़ और उधमपुर अजला में खुसूसी कार्रवाई के दौरान हीरोइन जब्त की और एक मनशियात फरोश की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उधमपुर में मजाल्टा नाके पर एक स्विफ्ट कार से दौरान तलाशी 50 ग्राम हीरोइन बरामद करके उसके ड्राइवर रियान मुख्तार साकना बड़गाम श्रीनगर, उसके मोविन उबैद लोन साकना हांजी दांतर अनंतनाग को गिरफ्तार कर लिया। फौज की तरफ से आज टंगडार करना में नशा मुक्त भारत अभियान की एक कड़ी के तौर मुकामी लोगों की शिरकत और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम टीटवाल मनाया गया। इस मौके पर इस खत्ते में मालामाल मिलिट्री विरासत की अक्कासी की गई और कौम के लिए जान दे चुके फौजी जवानों को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस सिलसिले में मुनक़दा एक मैराथन में 350 मर्द-ओ-ज़न ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम में शामिल लोगों ने एक सेहतमंद और मनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। मारूफ सहाफ़ी करामत कुयूम की हमशीरा आज इंतकाल कर गई है। बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सानह इर्तिहाल पर सोगवार कुंबे से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के अमले ने भी मरहुमा की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान के साथ ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी है इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेसिस पे अपडेट हो जाएगा। कश्मीर में बानी इस्लाम हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के दूसरे दिन भी आज खानकाह मौला श्रीनगर में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी दी। वहाँ दौरान शब मौलूद खानी और खत्मातुल मौज़मात नीज़ और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। कल की तकरीब पर नमाज ज़ोहर से कबल मीर वाइस कश्मीर मौलवी रियाज़ अहमद हमदानी ने हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह की तारीख साज खिदमात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में, और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे
उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था और कॉस्ट में मेजर 75 से 80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं, इनकम बढ़ा के, तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए। पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया। किसी भी टाइम में अगले 2-3 महीने में इसका अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम इस साल, हमारा प्लान में ये है कि हम रिक्रूट करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा। IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले 1 दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉग इन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।